Hello students, welcome to Educate. Today we'll be studying the first chapter of Themes in World History, class 11th NCERT, and the chapter's name is Early Societies. Now before we begin, जैसे इस चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है, ये चैप्टर किस बारे में होगा? अर्ली सोसाइटीज इस पूरी दुनिया में जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, जो बहुत ज्यादा प्राचीन थी, बहुत लंबे उनके लंबी टाइमलाइन है और उनसे उसको ट्रेस किया जाता है. We'll be studying about that. Now, as we move forward, this chapter talks about the civilizations of Mesopotamia, Egypt, so on and so forth. Present day Iraq में जो है, all right? And उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं हाउ पीपल ड्वेल्ड, उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, डाइटरी हैबिट्स क्या थी, वो क्या खाते थे, कैसे उनकी सोसाइटीज थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, एज अ सोसाइटी हाउ डिड दे गवर्न देमसेल्व्स, दैट इज समथिंग दैट विल बी टचिंग अपॉन इन दिस चैप्टर. ऑलराइट, सो फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स द अर्ली सोसाइटीज का इंट्रोडक्शन है. I will be skipping over this because it's just an overview of what you'll be studying in detail from the chapter. Social structure of the society से मतलब ये है, क्या एक रॉयल स्ट्रक्चर था, क्या कोई किंग होता था, या फिर डेमोक्रेसी थी, ओलिगार्ची थी, whatever it was. We'll be diving deep into it in this particular chapter. All right. So as we move forward, we also see a lot of metals were used: copper, stone, inscriptions, script, language, literature, dietary habits, as I've mentioned before, occupation, लोगों की primary occupation क्या होती थी, जिंदा रहने के लिए वो क्या करते थे, so on and so forth. All right. So moving forward, so this is the first timeline, which is very important. As I've emphasized more on history, आपको पता होना चाहिए टाइमलाइंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नाउ अब आप वंडर कर रहे होंगे कि आपने अभी तक बीसी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा आपने पढ़ा होगा. अभी आप देख रहे हैं MYA. व्हाट डज MYA मीन? Now, MYA means millions of years ago या फिर million years ago, यानी कि 10 लाख साल पहले. Alright? 1 million years ago. If it's visible, MYA million years ago. Alright? एंड देन एक और यूनिट होता है जो इसमें शायद मेंशन ना हो चैप्टर में, फिर भी यू शुड नो व्हाट इट्स अबाउट. सो दैट इज KYA, which is किलो years ago. मिलियन, अब वो कितना भी मिलियन हो सकता है, जरूरी नहीं 1 मिलियन हो. किलो years ago means 1000 years ago. Okay, that is MYA and KY. These are units or basically connotations जिससे कि टाइम को कैलकुलेट किया जाता है. So how to read timelines? You will find a timeline like this in one in every section. Each of these will indicate some of the particular timelines that you'll be studying further. All right. So timelines are important to understand history even better. आपके लिए ही आसानी होगी. And as you've understood MYA, KYA and before Christ or before common era. All right. So as we move forward, we have to stick to the timeline. And also, it will just make our work even easier. That is why. This timeline focuses on the emergence of humans and the domestication of plants
and animals. It highlights some major technological developments such as the use of fire, metals, plow agriculture, and wheel. Other processes that are shown include the emergence of cities and the use of writing. You will also find mention of these earliest empires as a theme will be developed in timeline 2. So timeline 1 is basically a very basic early initial stage of humans becoming, after becoming Homo sapiens, कैसे वो अपने आप को कंडक्ट करते थे, कैसा होता था, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. पहले सारे जानवर जितने भी होते थे, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट डॉग्स, वो वाइल्ड एनिमल्स. वुल्फ्स थे, वुल्फ्स से क्या कहते हैं, थोड़ा इवॉल्व हो करके उन्हें डोमेस्टिकेट किया गया. अपने पास इंसानों ने पाला, जिन जानवरों को पाला फॉर ईदर देयर फर, मीट, मिल्क और एनी ऑफ द यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट, देयर स्किन. So that was the time when animals were domesticated for hunting. For example, dogs were domesticated firstly ताकि humans को protection मिले और उनके लिए hunting में assistance हो. We'll be studying further about this in detail in this particular chapter. So moving on. So these are the dates. Just have a look. बहुत important है. 6 million years ago to 500,000 next years, which was Australopithecus. Evidence of the use of fire. पहली बार इंसानों ने आग डिस्कवर करी. यूरोप में कुछ भी नहीं था. This is the geographical location. This is the dates. Africa and Europe. First use of fire or the evidence of the use of fire came much later in Europe, all right, as compared to Africa. Also, Egypt is also part of Africa. So, plow agriculture, first kingdom cities, pyramids, hieroglyphic script, writing on papers, Egypt. Domestication of horse, use of copper, cultivation of wheat and barley, Europe, all right. So this is the timeline. ये आपको पता होना चाहिए. All right? Again, then we have Asia. ये एशिया का मैप है, सॉरी टाइमलाइन है. What was happening? The first use of fire are somewhere around 700,000 BC, China. All right? So Stone Age site in Rivat, पाकिस्तान में, वहां पे भी फर्स्ट यूज ऑफ फायर का एविडेंस मिलता है. ऑलराइट, यूज ऑफ कॉपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, composition of the Rigved, South Asia, and meanwhile in the rest of mainland Asia we have China, the ancient dynasties, ancient kingdoms, उन सब के बारे में mention मिलता है. ऑलराइट, Mauryan Empire, all the ancient empires that were there. Okay, these are the Americas. अमेरिका में क्या था? Domestication of animals, the invention of fire or the discovery of fire and everything. Okay, so we move on to writing and city life, the main component of the chapter. Okay, writing and city life, as the name suggests, Mesopotamia, Egypt and Babylonia. Babylonia was also a small part of Mesopotamia, so we'll be studying about that. Okay, so this is the map of Mesopotamia. According to the Bible, there was a flood, और Bible की काफी सारी stories इसमें coincide होती हैं. So just a quick recap before we move forward. City life began in Mesopotamia. All right, Mesopotamia present day Iraq को कहते हैं, ठीक है? And it is derived from the Greek word which is mesos, meaning middle, and potamos, meaning river. In the middle of a river, Tigris, Euphrates, important rivers in Iraq, present day Iraq. Okay, city life began in Mesopotamia, the land between Euphrates and the Tigris rivers, that is now part of the Republic of Iraq. Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life,
and voluminous and rich literature and its mathematics and astronomy. All right, काफी advanced civilization थी, mathematics and this and that, all of these advances where humans have reached. Mesopotamians had done it a long way ago. All right. So Mesopotamians' writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BC, so that the kingdoms of the entire region were writing to one another and to the Pharaoh of Egypt in the language and script of the Mesopotamians. Here we shall explore the connection between city life and writing, and then look at some of the outcomes of a sustained traditions in writing. All right. In the beginning of recorded history, the land, mainly the urbanized south, all right, was called Sumer and Akkad. Okay, Sumer and Akkad, these are two very important terms. You must know geographically where they're located and the timeline that we're talking about. So there are two tasks. First of all is the location. Location, all right, important. Second चीज है आपकी टाइमलाइन. ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हो गई, आपका हिस्ट्री इज लाइक 90% डन. ऑलराइट. सो when after 2000 BC, when Babylon became an important city, the term Babylonia was used for the southern region. बाद में जब Babylon expand हो रहा था, prosper कर रहा था, the southern region was called Babylonia. From about 1100 BC, when the Assyrians established their kingdom in the north, the region became known as Assyria. Assyria, Sumer, Babylon, Babylonia. This concept must be clear to you. सबसे अगर सिंपल तरीके से समझाऊं, पूरा इराक बेबीलोन है, ठीक है, और जो उसका अर्बनाइज साउथ था, जो थोड़ा डेवलप्ड सदर्न पार्ट था, वो था सुमेर. ठीक है, उसे सुमेर बोलते थे. और अकाड, सुमेर एंड अकाड, these terms should be clear to you. After 2000 BC, when Babylon became an important city, Babylonia was used for the southern region. बाद में जो southern region था, जैसे बेबीलोन एक important city बनी, तो southern region को Babylonia बोलने लगे rather than Sumer and Akkad. All right. From about 1100 BC, when the Assyrians established their kingdom in the north, the region became known as Assyria. 1100 BC में Assyrians ने अपना kingdom establish किया था northern Babylon की तरफ, तब उस जगह का नाम Assyria पड़ गया था. Right? So the first known language of the land was Sumerian. Urbanized south, Sumerian की language ज़्यादा known थी. It was gradually replaced by Akkadian around 2400 BC when Akkadian speakers arrived. Akkadian से replace कर दिया था जब Akkadian speakers आने लग गए थे. This language flourished till about Alexander's time, from 336 to 323 BC, with some regional changes occurring. Regional changes होते थे, लेकिन फिर भी जो language flourish कर रही थी वो आगे बढ़ ही रही थी. Alright? From 1400 BC, Aramaic also trickled in. Aramaic, as we studied before, is the ancient mixture of Arabic plus Hebrew. Alright? Arabic और Hebrew को मिला करके an ancient version. Ancient version of Arabic and Hebrew. Alright? This language, similar to Hebrew, became widely spoken after 1000 BC. It is still spoken in parts of Iraq. Alright? अभी भी इराक के काफी जगहों पे ये लैंग्वेज बोली जाती है. So, moving forward, archaeology in Mesopotamia began in 1840s at one or two sites. एक दो sites में start हुई थी, उरुक और मारी.
ठीक है। एक्सकेवेशंस बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू हो रही थी और अभी तक इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स किसी इंडियन सिटी के पास नहीं रहे हैं। अब हम मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, जो भी चीजें हमें मिलती हैं उनके बारे में तभी पढ़ पाते हैं। और कई सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं which we further investigate and learn about in the future. All right? अब मेसोपोटामिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी यूरोपियंस के लिए बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट जो बाइबल है उसमें बहुत ज्यादा मेंशन मिलता है मेसोपोटामिया का। और जो फर्स्ट पार्ट है बाइबल का, ओल्ड टेस्टमेंट, जिसे कैथोलिक्स और कहीं जो फॉर एग्जांपल देयर इज द ऑर्थोडॉक्स form of Christianity, Eastern Orthodox Christianity, which is followed in Eastern Europe, उसमें भी। So जो सुमेर है, it gets its name and it is also mentioned in the book of Genesis. उसको अपना नाम मिलता है शिमार से। शिमार का मतलब होता है एक उनका ब्रिक बिल्ट एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज, ही मतलब ईंटों से बनी हुई जगह को शिमार कहते थे, और शिमार से सुमेर हमें नेम मिलता है। ऑलराइट, अब होता क्या है, ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स जो है यूरोप के, दे हैव लुक्ड अपॉन मेसोपोटामिया एक एंसेस्ट्रल लैंड के तरीके से, कि हमारे पूर्वजों की जमीन है, ऐसे उसको देखा गया है। एंड जैसे आर्कियोलॉजिकल स्टडी और वर्क, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन शुरू हुई, तो और ज्यादा एक एंथुजियाज्म एक तरीके से, या फिर बहुत ज्यादा एक पुश मिला, बिकॉज इट वाज अ स्टडी और यू नो डिस्कवरी, वट एवर यू कैन से अबाउट what was written in the Bible, right? That is why the enthusiasm in Europe. Okay, so बाइबल की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है फॉर दोज ऑफ यू हु नो, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा समझा देता हूं। बाइबल के हिसाब से एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। जैसे मुस्लिम्स में देयर इज नूह अलैहिस्सलाम, देयर इज नोआ, राइट, वन ऑफ द प्रॉफिट्स, वन ऑफ द मसीहस। ही वाज कमांडेड बाय गॉड कि देखो, यू आर अ राइचियस पर्सन, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है, एज मेंशन्ड, कि तुम एक आर्क बनाओ। नाउ व्हाट द आर्क मींस इज कि बड़ी सी शिप बनाओ, और उस शिप में हर एनिमल की जितनी भी स्पीशीज हैं उनका एक एक पैर लो, वन मेल एंड वन फीमेल, ताकि वो आगे जाकर के रिप्रोड्यूस करें और एनिमल लाइफ एक्सटिंक्ट ना हो। सो ही टुक एवरीवन विद हिम, बिल्ट अ रियली बिग बोट, और जब फ्लड आया, दुनिया डूब गई, तो ही सेव्ड अ लॉट ऑफ एनिमल्स, हर्ड्स एंड एवरीथिंग। ओके, अब इसमें बहुत ज्यादा एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में, बिकॉज जो प्रिंसिपल कैरेक्टर था वो ज़्यूसुद्रा था, या फिर उटना फिश्तिम, उतना फिश्तिम, जो कि लोकल इंस्क्रिप्शंस में मेसोपोटामिया में मिलता है कि कोई ना कोई फ्लड जरूर आया होगा, देयर मस्ट बी समथिंग, सम नेचुरल कैलामिटी व्हिच लेड टू this person Noah building an ark. Okay, so Mesopotamia and its geography. Iraq is a land of diverse environments, बहुत diverse country है। Even for the matter of fact present day जो इस्लाम के sects हैं, sections हैं, शिया, सुन्नी, and वहाँ पे अभी भी काफी ancient tribes रहते हैं। There are Yazidis, then we have Kurdish people, तो काफी अलग अलग ट्राइब्स हैं, काफी डाइवर्स जगह है। ठीक है, अब ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, इनका जो क्लियर स्टेटमेंट्स हो, जो वाइल्ड फ्लावर्स, और वहां पे क्रॉप्स भी ग्रो करना थोड़ा मुश्किल था। ऑलराइट, एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले यहाँ स्टार्ट हुआ था 700 to 600 BC के बीच में। ऑलराइट, टाइमलाइन अगेन इंपॉर्टेंट, I just want to emphasize more on this. Okay? अब नॉर्थ में जो अपलैंड है, स्टेपे है। स्टेपे बेसिकली इज खाली जमीन, बहुत लंबी जमीन, जिसमें कि ज्यादा फॉरेस्ट एरिया नहीं होता। ओके, जहां पे एनिमल हर्डिंग लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लाइवलीहुड का ऑप्शन था।
और बहुत अच्छे तरीके से लोग अपनी भेड़ बकरियां चरा करके इतनी बड़ी जमीन पे अपना गुजारा कर लेते थे। ओके, अब सर्दियों के बाद या फिर बारिश के बाद जितनी भी भेड़ बकरियां होती थी, शीप एंड गोट्स फीड ऑन ग्रासेस एंड लो श्रब्स दैट ग्रो हियर। जो छोटे छोटे श्रब्स या झाड़ उगते थे उस पे उसको खा करके और ज्यादा शीप्स और जो हर्डर्स होते थे अपने भेड़ बकरियों का गुजारा ऐसे करवाते थे उनके सर्वाइवल के लिए। ऑलराइट, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड I want you to have a look at this map. Okay? So now, अगर हम देखें ये जो छोटे छोटे triangles हैं, as you can see here, they indicate your mountain regions. Okay? And there we have, this is the Persian Gulf. इंडस रिवर अगर आप साइड से देखें यहाँ पे इंडिया स्टार्ट हो जाता है, ये छोटा सा गुजरात आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे दिस इज गुजरात एंड दीज आर द हिंदू कुश माउंटेन्स। ये ईरान है, दिस इज सीरिया, टिग्रीज, यूफ्रेटीज, मारी, बेबीलोन, उरुक, उर। डेजर्ट ऑफ अरेबिया, दिस इज सऊदी। रेड सी यहां पर आता है, इजिप्ट, रिवर नाइल, टर्की, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, यहां पे कॉकेसस माउंटेन्स आ जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस मैप शुड बी क्लियर टू यू बिकॉज आपके लिए ही आसानी होगी कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। ऑलराइट, सो जैसा मैंने बताया एनिमल हर्डिंग का पैटर्न कैसा होता था सर्दियों और गर्मियों के टाइम में। नाउ अब जो ईस्ट का पार्ट है, ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखें, ईस्ट में टिग्रीस रिवर, राइट ओवर हियर, रिवर टिग्रीस टुवर्ड्स द ईस्ट, आपका मारी, बेबीलोन, उरुक और उर में। ओके, अब यहां पे कम्युनिकेशन और ट्रेड अच्छे से इस्टेब्लिश था टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट या फिर ईरान और एनी पार्ट टुवर्ड्स द ईस्ट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अब जो साउथ है दैट इज अ डेजर्ट एरिया, थोड़ा सा रेतीला इलाका, एज यू कैन सी ओवर हियर इन द मैप एज वेल। थोड़ा और जूम करा हुआ है इस मैप को टुवर्ड्स फोकसिंग मोर ऑन मेसोपोटामिया एंड हियर यू कैन सी Baghdad, present day. Now these small dots are zone of agricultural productivity, irrigated area जहां पे की उपजाऊ और अच्छी खासी फर्टाइल लैंड है, और जो सदर्न लिमिट जोन ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर, ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं वो है, और ट्राइंगल अगेन माउंटेनस रीजन्स। सो टेल अबू सलाबिक, यहाँ पे बेबीलोन, उरुक, उर एंड मारी, निनिवे, निम्रड एंड असर। ओके, सो दीज आर द प्लेसेस। यहां पे आप ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फोकस करने की कोशिश करिए रिवर्स पे करिए, बिकॉज रिवर्स प्रोवाइडेड एसेंशियल ट्रेड रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑलराइट, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें, ये वर्ड्स आप कनेक्ट कर सकते हैं जब भी आप किसी रिवर या वाटर रूट की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर में, स्पेशली इन हिस्ट्री। ऑलराइट, अब साउथ जो है, सदर्न पार्ट आप देखेंगे थोड़ा डेजर्ट एरिया है, दिस इज द सदर्न पार्ट व्हिच इज द डेजर्ट। नॉर्थ में स्टेपे, जैसे एज आई मेंशन्ड बिफोर, लार्ज ग्रासलैंड्स विद रेयर फर्टिलिटी रेट, श्रब्स एंड स्क्रब्स, बेसिकली झाड़ियां ये सब होता था, एंड रेयर यानी फॉरेस्ट एरिया। ओके, अब साउथ द सदर्न पार्ट वो थोड़ा डेजर्ट एरिया है, और जो राइटिंग और सिटीज इमर्ज हुई थी सबसे पहले वहीं पे हुई थी जहां डेजर्ट एरिया था उसी के आसपास। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज द रिवर्स यूफ्रेटीज एंड टिग्रीस which rise in the northern mountains carry loads of silt fine mud। अब ये जो नदियां ऊपर से बहती हैं ये बहुत अच्छी मिट्टी अपने साथ लेकर के बहती हैं, और जब भी इनकी बाढ़ आती है, कोई फ्लड आता है,
जो उनका वेस्ट होता है वो फील्ड पे एकदम डिस्पर्स होके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि लैंड ऑटोमेटिकली फर्टाइल बन जाता है इवन ऑफ द डेजर्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं कि यूफ्रेटिस की बाढ़ आ गई डेजर्ट में, तो यहाँ पे जो पहाड़ों से या फिर इधर से जो भी अपना सॉइल इकट्ठा करती है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर फ्लड आएगा तो उसका सॉइल और वेस्ट भी डिस्पर्स होगा, फैलेगा, गिरेगा जमीन पे, खास करके डेजर्ट एरिया में, तो वो बहुत ज्यादा जमीन को फर्टाइल बना देगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, सो जब बाद में यूफ्रेटिस डेजर्ट में एंटर करती है, तो जो वाटर है वो धीरे धीरे छोटे छोटे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। अब ये जो चैनल्स होते हैं, ये अपने बैंक्स में और अपने पास्ट में जो अपना इनका एरिया होता है, एक पाथ होता है, वो इरिगेशन कनाल का काम करते थे, ताकि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें पानी की कमी ना हो। ऑलराइट, it used to provide like as an irrigation system small banks and canals as it has flooded and created its newfound path. Very important. ठीक है, अब होता क्या था, water could be led into fields of wheat, barley, peas और lentils whenever necessary. तो ये क्रॉप्स उगाने के लिए ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा एक फैसिलिटेशन आ जाती थी थ्रू नेचर। ऑलराइट, of all ancient systems, that of the Roman Empire included, it was agriculture of southern Mesopotamia. Okay, the agriculture of southern Mesopotamia, very important. Okay, that of the Roman Empire also, that was the most productive. ठीक है, सबसे ज्यादा अपने रीजन में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, डिस्पाइट हैविंग the least amount of rainfall. Sufficient rainfall nahi thi for growing all these crops. Even then, the facilitation and the way in which they were carrying on with their agricultural methods was beyond impressive. All right. So, सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, जो भेड़ बकरी चराने का काम था नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेसोपोटेमियंस कर रहे थे। ऑलराइट, और जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत हाई थे फॉर फर्टाइल लैंड टू ग्रो क्रॉप्स एंड दिस एंड दैट, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे भेड़ बकरी चराना, हर्डर्स एंड बेसिकली एनिमल हर्डर्स, शीप, जो शीप को हर्ड करवाते हैं, ऑलराइट, भेड़ बकरियां चरा करके उनका वूल, मीट, मिल्क एटसेट्रा ये यूज करना। ऑलराइट, और जो फिश है वो भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होती थी। एंड सो बेसिकली पिसीकल्चर वाज आल्सो, पिसीकल्चर बेसिकली आपका फिश ग्रो करना फॉर कंजम्पशन, वो भी होता था। ऑलराइट, और गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा अवेलेबल थे। डेट पाम्स, खजूर के पेड़ भी बहुत ज्यादा अबंडेंस में होते थे। तो अभी ये जो सिटीज ग्रो कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ रूरल प्रॉस्पेरिटी पे नहीं कर रही थी, इसको लेकर के और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब इन फैक्टर्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, अब अर्बनिज्म का इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। अर्बनिज्म क्या होता है? द इमर्जेंस, इंपॉर्टेंस एंड द राइज ऑफ सिटीज और अर्बन कल्चर, अर्बनाइजेशन बेसिकली। अब अगर हम बात करें, जो अर्ली सिटीज है मेसोपोटामिया में, वो ब्रॉन्ज एज तक जाती हैं, 3000 बीसी तक। ऑलराइट, 3000 बीसी तक। ब्रॉन्ज बेसिकली एक अलॉय होता है, कॉपर और टिन को मिला करके बनता है। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रॉन्ज का मतलब था इसको यूज करने का कि ये इनका जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी दूर की जगहों से, अलग अलग जगहों से हो रहा था,
क्योंकि दो तीन चीजों को मिला करके बन रहा है, मतलब कि ट्रेड इस्टेब्लिश था विद डिफरेंट सिटीज और प्लेसेस। अब मेटल टूल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नेसेसरी थे एक्यूरेट कारपेंट्री के लिए, कार्विंग्स के लिए, इंस्क्रिप्शंस के लिए, कोई भी ऐसी कल्चर की चीज बनानी होती थी उस टाइम पे किंग्स को, चीफ्टन्स को, फॉर दैट। ओके, ड्रिलिंग बीड्स होते थे, ठीक है, स्टोन सील्स, इन सब चीजों के लिए। वेपन्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, अनदर थिंग दैट वी हैव टू नोटिस। ऑलराइट, अब जैसे कि वेपन्स भी ब्रॉन्ज के बने हुए थे। फॉर एग्जाम्पल जो स्पीयर्स होते हैं, जो भाले होते हैं, उनका टिप ब्रॉन्ज का होता था। ऑलराइट, अब सिटीज और टाउन्स जो थे दे वर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन, दे वर मतलब सिर्फ लार्ज पॉपुलेशन वाली जगह नहीं थी, और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जहां पे इकोनॉमी डेवलप कर रही थी। ऑलराइट, और जो बाकी स्फीयर्स हैं फूड प्रोडक्शन के, वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। पहली बात आपका इकोनॉमी, दूसरी बात आपका फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के न्यू मेथड्स जो कि लोगों को इन जनरल, नो मैटर वेयर दे लिव्ड इनसाइड द पर्टिकुलर एरिया, इवन इन रूरल बेबीलोन और इवन इन अर्बनाइज्ड सिटीज, इट क्रिएटेड अ पैटर्न, एक सिंक्रोनाइजेशन, एक सिनर्जी, जिससे कि जो अर्बनाइजेशन में डेवलपमेंट हो रही थी, इट वाज हेल्पिंग द एंटायर रीजन ऑल टुगेदर। ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विसेज। ये सब चीजें तो होती हैं, लेकिन इससे और भी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब जो सिटी पीपल थे वो बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर थे। ऑलराइट, और उनके जो प्रोडक्ट्स थे उसमें वो दूसरे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों पे डिपेंड नहीं करते थे, चाहे वो दूसरी ट्रेड की सिटीज हो या फिर रूरल एरियाज हो, उनके लिए भी। ऑलराइट, नाउ फॉर इंस्टेंस द कार्वर ऑफ अ स्टोन सील requires bronze tools that he himself cannot make. Alright, and colored stones for the seals that he himself cannot make, and colored stones that he does not know where to get. His specialization is fine carving, not trading. Now, अब जो विलेज में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, दे नो हाउ टू कार्व, क्रिएट एंड बेसिकली नए चीज़ों को बनाना, उनसे आर्ट का काम करना, बट उसके लिए ट्रेड इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि हाँ हम ट्रेड कर पाए, वी कैन ट्रेड विद ऑल द डिफरेंट प्लेसेस जहां से ये गुड्स, मेटल्स और मटेरियल्स प्रोक्योर किए जाते थे। ऑलराइट, उसकी स्पेशलाइजेशन कार्विंग है, ट्रेडिंग नहीं, जाहिर सी बात है, मेंशन्ड हियर। अब जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है वो खुद तो बाहर जाएगा नहीं मेटल्स लेने के लिए, कॉपर और टिन लेने के लिए, और उसे रेगुलर सप्लाईज साथ में चाहिए रहते होंगे। जो आर्टिसन है, जो बना रहा है, कार्विंग कर रहा है, किस चीज का, चारकोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर फ्यूल, इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके अर्बन लाइफ का। राइट, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एंड डिफरेंट लोगों को अलग अलग काम दिए गए थे जिसको उन्हें कंप्लीट करना था। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है, ताकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, एक गिल्ड हो, एक कम्युनिटी हो, ताकि और ज्यादा फैसिलिटेटेड तरीके से काम किया जाए। ऑलराइट, फ्यूल, मेटल और अलग अलग टाइप के स्टोन्स, वुड, ये बहुत डिफरेंट जगहों से आते थे और ये सिटीज में ही मैन्युफैक्चर किए जाते थे, जो एक्सक्विजिट मटेरियल्स होते थे खास करके वो। ऑलराइट, thus organized trade and storage is needed. Organized trade और storage बहुत ज्यादा जरूरी भी था। जो ग्रेन की डिलीवरी थी और जो बाकी के फूड आइटम्स थे जो कि विलेज से सिटी तक, और फूड सप्लाईज जो स्टोर होते थे और डिस्ट्रीब्यूट होते थे, ये एसेंशियल चीजें सिटी से ही होती थी। Besides,
many different activities have to be coordinated. अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल में रखना, that was an important part. There is an artisan, एक आर्टिसन है, उसके अंडर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग मटेरियल्स प्रोक्योर करके उसके पास ला रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है. ऑलराइट, काफी डिफरेंट अप्रोच थी इसमें. ऑब्वियसली जो ऐसा सिस्टम है वो लोगों को कमांड्स देता है ओबे करने के लिए, और अर्बन इकोनॉमीज में रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ठीक है. नाउ वी लुक एट दिस डायग्राम, द वारका हेड. नाउ द वुमन्स हेड वाज स्कल्प्टेड इन व्हाइट मार्बल इन ओरुक बिफोर 3000 BC. व्हाइट मार्बल पे आपका स्कल्प्ट किया गया है, एक वुमन का हेड है. ऑलराइट, द आईब्रोज एंड आईज वुड प्रोबब्ली हैव टेकन lapis lazuli blue and shell white and bitumen black inlays. Very advanced, different colors of different colors and stones have been used which come from different places, as I've said before. जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, उसी के आधार पे. There is a groove along the top of the head, perhaps for an ornament. सर के ऊपर एक थोड़ा सुराग बनाया है, शायद किसी गहने के लिए उस टाइम पे जो पहनते हो, फॉर दैट. दिस इज अ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर एडमायर्ड फॉर द डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ द वुमन्स माउथ, चिन एंड चीक्स. ऑलराइट, एंड इट वाज मॉडल्ड इन अ हार्ड स्टोन दैट वुड हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस. ऑब्वियसली अलग अलग जगहों से लिया गया था. बिगिनिंग विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोन. ये जितने भी एक आर्ट का ये फॉर्म है, दिस इज वेरी एडवांस्ड. हमें ये देखने को मिलता है कि इतना ज्यादा एडवांस है कि नॉर्मल इंसान से बना नहीं सकता. अलग अलग जगहों पे बहुत मेहनत करके, प्रोक्योर करके और चीजें इकट्ठे करके, डिफरेंट स्टोन्स को इकट्ठा करके फिर बनाया गया है. ऑलराइट, सो मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज. ठीक है, अब शहरों में कैसे सामान या फिर माल आता था बल्क में. However, rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. Mineral resources कम थे. Most parts of the south lacked stones for tools, seals, and jewels. The wood of the Iraqi date palm and poplar was not good enough for carts, cartwheels or boats, and there was no metal for tools, vessels or ornaments. अब जो सदर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जो अर्बनाइज्ड था, ठीक है, रिच फूड सोर्सेज थे मेसोपोटामिया में, उसमें मिनरल रिसोर्सेज थोड़े कम थे. फूड रिसोर्सेज ज्यादा थे, मिनरल रिसोर्सेज कम थे. ये बात याद रखनी है. काफी जो एरिया से साउथ के, वहां पे जो स्टोन्स मिलते हैं टूल्स बनाने के लिए, सील्स के लिए, पत्थर के लिए जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, गहनों के लिए, ज्वेल्स के लिए, या फिर वुड के लिए, ठीक है, ऑफ द इराकी डेट पाम, जो ये सारी चीजें कार्ट्स के लिए, चीजें बनाने की, कार्ट यानी कि जो व्हील के साथ एक जैसे एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना होता था, जैसे बैलगाड़ी टाइप होती थी पुराने जमाने में, वो बनाने के लिए भी वुड एडिक्वेट नहीं था, पूरा नहीं पड़ता था. ऑलराइट, एंड देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स. वेपन्स, टूल्स बनाने के लिए मेटल, क्या कहते हैं, इतने ज्यादा मेटल्स नहीं थे. और वेसल्स यानी कि पानी के घड़े, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी उस टाइम पे जो यूज होती थी, और गहने बनाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था. तो हम ये समराइज कर सकते हैं कि जो एंशिएंट मेसोपोटामियंस थे, उन्होंने ट्रेडिंग बहुत करी, और उन्होंने अपने अबंडेंट टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर की जो चीजें थी वो ट्रेड करी हैं वुड के लिए, कॉपर के लिए, टिन के लिए, सिल्वर, गोल्ड, शेल और अलग अलग पत्थर जो कि टर्की, ईरान और अक्रॉस द गल्फ के जो अलग अलग किंगडम्स थे, जो भी हमने मैप में देखा है, उससे आ रहे थे. ठीक है, इनके पास एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल वाले गुड्स की कमी नहीं थी, लेकिन इनको आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल दीज थिंग्स, इनको स्टोन्स भी इंपॉर्टेंट थे जो कि इन जगहों से आते थे. ऑलराइट, रेगुलर एक्सचेंजेस possible only when there was a social organization
were initiated by the people of southern Mesopotamia. अब जो southern Mesopotamia था, उन्होंने expeditions और आपके एग्रीकल्चर और बाकी सारी चीजें जो थी, एक्सचेंजेस थे, वो सदर्न मेसोपोटामिया ने ही इनिशिएटिव उठाया था, जो सदर्न पार्ट था मेसोपोटामिया का। अब क्राफ्ट्स, ट्रेड और सर्विसेज को अगर हम साइड रखें तो जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि उससे ट्रेड एस्टैब्लिश होता है, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार बढ़ता है, बिजनेस होता है, जो गुड्स आपके पास नहीं होते वो आपके पास आते हैं और आप ट्रेड अच्छे से इस्टेब्लिश करते हैं। ऑलराइट, इफ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड to carry grain or charcoal into cities on animal packs or bullock carts, the city economy will not be viable. अब अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एनिमल फीड लग रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में एफिशिएंसी नहीं है, मुश्किल आ रही है, आप मतलब कम खर्चे में नहीं कर पा रहे, आपका इन जगहों पे खर्चा बहुत आ रहा है, चाहे वो अनाज के लिए हिसाब से हो, चारकोल के हिसाब से हो, जानवरों के हिसाब से हो, बैलगाड़ियों के हिसाब से हो, आपका खर्चा प्रॉफिट से कम होना चाहिए। खर्चा कम, प्रॉफिट ज्यादा, तब जाके आपको मुनाफा मिलता है। दैट्स व्हेन यू गेन द प्रॉफिट्स। ऑलराइट, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है। नाउ जो चीपेस्ट मोड था ट्रांसपोर्टेशन का हर जगह, वो था पानी के थ्रू वाटर। नदी नेचुरल बह रही है, आपको बस उस पर एक नाव बनानी है, एक बोट बनानी है विच इज सेफ इनफ टू नॉट सिंक एंड सेल थ्रू। आपको उससे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके ट्रेड करना होता था। ऑलराइट, रिवर बोट्स और barges loaded with sacks of grain are propelled by the currents of the river and or wind, but when the animal transport goods, they need to be fed. The canals and natural channels of ancient Mesopotamia were in fact routes of goods transport between large and small settlements. And the account on the city of Mari later in the chapter, the importance of the Euphrates as a world route will also become clear. Now, अब अगर हम बात करें कि अगर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों होता था रिवर्स, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह जाना इजी था, जस्ट आपको जो रिवर की करंट्स है उसके साथ बहना है, और अगर एनिमल्स आपको साथ ले जाने तो उनका अनाज, खाना, पानी, ये सारी चीजें उनकी केयर, मेंटेनेंस करनी पड़ती थी। ऑलराइट, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। जिससे पहले हम राइटिंग और स्क्रिप्ट में जाएं, आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। इस टाइप की थोड़ी स्क्रिप्ट होती थी, मिलती जुलती। यूनिफॉर्म सिलेबिक साइंस। अब ये सिलेबिक साइंस है, कुछ ना कुछ डिनोट करते हैं। नंबर्स, बोर्ड्स, ग्रेन, फिश, इंस्क्रिप्शंस कुछ ना कुछ बताते हैं, ऑक्स एटसेट्रा। ऑलराइट, अब हर सोसाइटी में कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर होती है जिससे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ऑलराइट, दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाई? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज इट सो, बट इन अ डिफरेंट वे। हाउ? When we talk about writing or a script, we mean that spoken sounds are represented in visible signs. जब हम राइटिंग या स्क्रिप्ट की बात करते हैं, मतलब कि जो हम बोलना चाह रहे हैं उसे हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है दी डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। ऑलराइट, THEDEV, so these are letters combined together which we know कि इसको पढ़ने से क्या साउंड निकलेगा। वेरी सेम वे जो सबसे पहली मेसोपोटामियन टैबलेट्स है, टैबलेट्स एज इन पत्थर, बड़ा सा पत्थर जिसपे इंस्क्रिप्शन लिखी होती थी, वो 3200 BC पुरानी है। ऑलराइट, और उसमें पिक्चर्स हैं, साइंस हैं और नंबर्स हैं। साइन लैंग्वेज, पिक्चर्स, साइंस एंड नंबर्स, ये सब इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता था। ऑलराइट, अब 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, fish, bread, loaves, etc. are also present. एनिमल्स के बारे में जो अभी यहाँ पे मेंशन करेंगे, मछलियां, ब्रेड, लोव्स, खाने की चीजें, ये भी मेंशन है उसमें।
list of goods that were brought into or distributed from the temples of Uruk. Important temples of Uruk, basically important centers which we'll be studying further. क्यों इतने important centers होते थे temples भी, और उनका significance और role क्या होता था इनकी society में, we'll be reading further in this chapter. अब ये भी उरुक भी एक साउथ में सिटी थी, as we have seen in the map before. Clearly writing began, राइटिंग कब शुरू हुई, जब सोसाइटी को अपने ट्रांजैक्शंस, जो ट्रेड चल रहा था एक जगह से दूसरी जगह, उसका एक रिकॉर्ड रखना जरूरी था. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक रिकॉर्ड रहे एक तरीके से. जब बिजनेस हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, गुड्स का लेन देन हो रहा है, पैसा या फिर बार्टर सिस्टम हो, इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स आप स्टोन्स ले रहे हो, इन एक्सचेंज ऑफ टेक्सटाइल्स, इन एक्सचेंज ऑफ एनिमल गुड्स, वॉट एवर, you're procuring all these things. So keeping records became essential. Alright, जो सिटी लाइफ में ट्रांजैक्शन होती थी वो अलग अलग टाइम पे चलती थी और साइमल्टेनियसली चलती थी, कंटिन्यूस प्रोसेस था, और बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती थी इसमें, बिकॉज इट वाज ट्रेड एंड विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे वहां ले जाए जाते थे, और जो वहां अवेलेबल नहीं था यहां लाया जाता था. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब मेसोपोटामियंस मिट्टी की टैबलेट्स पे लिखते थे जो क्ले की बनी होती थी. जो स्क्राइब होता था, एक स्क्राइब का काम होता था लिखने का, जैसे कि वो सिर्फ राजा के लिए, जो राजा बोल रहा है स्क्राइब उसे लिखता था. राइटिंग अबाउट द किंग, अबाउट रिकॉर्ड्स. अ स्क्राइब्स बेसिक रोल वाज टू कीप राइटिंग, नथिंग मोर देन दैट. ऑलराइट, और वो बेसिकली पहले मिट्टी की जो टैबलेट थी उसको गीला करता था. ही यूज्ड टू मेक इट, scribe would wet clay and put it into a size. He would also hold comfortably in one hand. एक हाथ में थोड़ी क्ले को गीला कर दिया और फिर उसके ऊपर इंस्क्राइब और इंस्क्रिप्शंस लिखने शुरू कर दी. दैट वाज द रोल ऑफ अ स्क्राइब. अब ये बहुत ज्यादा ध्यान से करना होता था क्योंकि सरफेस स्मूथ था, क्ले वेट था, एंड ड्यू टू दैट जो शार्प एंड होता था ऑफ रीड कट ओब्लिकली. अब रीड होता था जो कि बहुत ध्यान से उसको शेप दिया जाता था, एंड ही वुड प्रेस वेज शेप्ड cuneiform. Cuneiform is derived from the Latin word cuneus meaning wedge and forma meaning shape. Wedge form मतलब एक नीडल टाइप या ऐसे लगा लीजिए, उससे शेप दिया जाता था. Dried on the sun, clay would harden and tablets would be almost as indestructible as pottery. अब ये बहुत अच्छा तरीका था. Even if we talk about Moses, जिन्हें कि इस्लाम में मूसा अलैहिस्सलाम कहा गया है. मोजेस एंड द 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड. हालांकि उन्होंने जो ऐसी टैबलेट उनकी है जिसमें 10 कमांडमेंट्स है टू लीव द करेक्ट वे ऑफ लाइफ विच इज फॉलोड बाय द जूइश पीपल इन टुडेज टाइम, वो स्टोन पे लिखा गया था. ऑलराइट, बट ऐसे क्ले पे लिखना बहुत ज्यादा इजी था. मिट्टी को गीला करो, उस पे लिखो और फिर उसको सुखाने के लिए रख दो. एज सून एज इट गेट्स ड्राइड अप इट यूज्ड टू बी एज इंडिस्ट्रक्टिबल एज स्टोन. इतना कड़क हो जाता था पत्थर के जैसे. ऑलराइट, सो अब जो रिटन रिकॉर्ड होता था, जैसे कि डिलीवरी पीसेस का, कौन सी चीज डिलीवर हुई है, कौन सा एक्सचेंज हो रहा है, मेटल्स आए या नहीं आए, वो भी इन टैबलेट्स पे लिखे जाते थे. ऑलराइट, once the surface dried, signs could not be pressed onto a tablet. Obviously, so each transaction, however minor, required a separate written tablet. Alright, this is why tablets occur by the hundreds of Mesopotamian sites, and it is because of this wealth of sources that we know so much more about about Mesopotamia than we do about contemporary India. अब ये क्योंकि इंडिस्ट्रक्टिबल थे तो एक बार ये सूख जाता था, इसके ऊपर दोबारा नहीं लिख सकते थे, तो हर एक फ्रेश ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ध्यान से लिखना पड़ता था, और फिर एक फ्रेश ट्रांजैक्शन के लिए एक नई टैबलेट यूज करी जाती थी, क्ले की, वेट क्ले की. राइट,
अब by 2600 BC or so, letters became cuneiform and the language was Sumerian. Language क्या थी? Sumerian and letters became cuneiform. Cuneiform क्या होता है? Definition आपकी यहाँ दे रखी है. You have to learn this. There are no exceptions to it, no matter what anyone says. Very important, all right? अब ये Latin words आते हैं cunesis, wedge and forma meaning shape, जो कि बेसिकली वेज का शेप देना, एक तरीके से साइन लैंग्वेज टाइप का एक ऐसा सिस्टम चलता था. शेप्स के थ्रू वर्ड्स कम्युनिकेट किए जाते थे. ऑलराइट. राइटिंग वाज आल्सो नॉट ओनली यूज्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट आल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज. ऑलराइट. गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स and announcing the changes a king had made in the customary laws of the land. Basically राजा के फरमान, राजा क्या करता है उस टाइम पे, क्या फरमान इशू हो रहे हैं, ये सारी चीजें टैबलेट्स में मेंशन होती थी. ऑलराइट. Sumerian, the earliest known language of Mesopotamia, was gradually replaced after 2400 BC by the Akkadian language. अब 2400 BC के बाद Akkadian language आ चुकी थी और Sumerian was not anymore the official language of the particular area. Alright? Cuneiform writing in the Akkadian language continued in its use until the 1st century Common Era. 1st century Common Era तक चल रही थी. That is for more than 2000 years. लगभग 2000 साल से भी ऊपर तक. Okay? The system of writing. राइटिंग का सिस्टम. अब जो क्यूनिफॉर्म साइन है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता था एक सिंगल कांस्टेंट, और उसके अलावा जो बाकी साउंड्स होते हैं उनको मिला करके बनाई जाती थी. फॉर एग्जांपल वॉवल्स सच एज एम और ए इन द इंग्लिश अल्फाबेट. एम और ए को एग्जांपल मान लेते हैं, बट सिलेबल्स से पुट और ला और इन, अब ये जो सिलेबल्स हैं जिनसे साउंड निकलती है वॉवल्स मिला करके, वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. दस द साइंस दैट अ मेसोपोटामियन स्क्राइब. अब ये जो स्क्रिप्ट की बात हो रही है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सुमेरियंस और अकेडियंस की भी. ऑलराइट. टू लर्न ran into hundreds, he had to be able to handle a wet tablet and get it written before it dried. मेन बात होती थी वेट क्ले की, और जो लैंग्वेज की वावल्स हैं, सिलेबल्स हैं, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे. ऑलराइट. नाउ सो राइटिंग वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट. अब ये बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट था, हर किसी को आता नहीं था, बहुत स्किल चाहिए होती थी, इसके लिए लर्न करना पड़ता था इसको. सो राइटिंग वाज अ स्किल्ड क्राफ्ट, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या था, बहुत ज्यादा एक बड़ी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट थी. इट वॉज समथिंग वेरी अनकॉमन, और बहुत ज्यादा आपको इंटेलेक्चुअल माना जाता था इफ यू कुड डू द सेम. कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म, जो लोग बातें करते हैं उसको विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना वाज अ वेरी बिग थिंग ड्यूरिंग दैट टाइम. और जो साउंड्स हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के, उनको इकट्ठा करके राइट करना वाज समथिंग वेरी वैल्यूएबल हेल्ड एट दैट टाइम ऑल्सो. लिटरेसी, अब हम बात करते हैं लिटरेसी की ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके. वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट. लिटरेसी उतनी ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थी एज मेंशन्ड हियर. ओके. नॉट ओनली वर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न, मेनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स. अब काफी सारे साइंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे एज वी हैव सीन इन द डायग्राम बिफोर. साइन लैंग्वेज थी, सिलेबल्स थे, क्यूनिफॉर्म वे ऑफ राइटिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो भी था. नॉट एज सिंपल एज द इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर जो बाकी सिंपल साइन लैंग्वेजेस थी उनकी तरह नहीं था. ठीक है. अब जो कोई भी, अगर मान लेते हैं कोई किंग था जो पढ़ सकता था, वो ये कहता था कि जितनी भी उसकी इंस्क्रिप्शंस थी उसमें उसकी जितनी भी गाथाएं हैं, जो भी उसने वॉर्स लड़ी, जो भी उसने सक्सेस अचीव किया है अपनी लाइफ में, जो भी उसने अपनी लाइफ में ट्रेड और कॉमर्स, इकोनॉमी को फायदा किया, वो चाहता था ज्यादा से ज्यादा लिखा जाए. अब ज्यादातर जो राइटिंग होती थी, इंस्क्रिप्शंस होते थे, दे यूज्ड टू रिफ्लेक्ट अ वे ऑफ communicating or conveying the message what was being told by the scribe to the one reading it or for the general people.
For example, a letter from of an official would have to be read out to the king. So it would begin. अब अगर मान लेते हैं कोई ऑफिसर का लेटर राजा के पास जाता है तो वो किस तरीके से रीड किया जाएगा? राइट, टू माई लॉर्ड ए फॉर एग्जाम्पल किंग का नाम मान लेते हैं, ABC और वट एवर. स्पीक thus says your servant B, I have carried out the work assigned to me. A long mythical poem about creation ends thus. Let these verses be held in remembrance and let the elder teach them. Let the wise one and the scholar discuss them. Let the father repeat them to his sons. Let the ears of even the herdsmen be open to them. ऐसे लिखा जाता था. राइट, बेसिकली एक किंग या फिर कोई भी स्क्राइब होता था, उनका एम ये होता था, इवन दो लिटरेसी वाज नॉट वेरी फार वाइड स्प्रेड, कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कन्वे किया जाए ताकि किंग की अचीवमेंट्स लोगों तक पहुंचे. सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी रिटन. ऐसा फॉर्मेट होता था. राइट, यूजेस ऑफ राइटिंग. ओके, अब जो कनेक्शन है हमारा सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग, ये बहुत लंबी एक सुमेरियन पोयम में भी लिखा हुआ है जो है एमरकार के बारे में. अबाउट हुम? एमरकार, जो कि काफी पुराना और वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ उरुक माना गया है. ओके, मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में उरुक एक ऐसी जगह थी जो पार एक्सीलेंस थी और उसे द सिटी के नाम से भी जाना जाता था. सबसे ज्यादा डेवलप्ड, सबसे ज्यादा ट्रेड और कॉमर्स वहीं से कंडक्ट किया जाता था. ऑलराइट, एनमेरकार इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर. फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ही इज एसोसिएटेड विद दैट. वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम मार्किंग दिस ताकि आपको आइडिया रहे व्हाट्स इट अबाउट. Alright, the epic says trade was not known and Merkar wanted lapis lazuli, bluestone, जो एक बहुत नीला पत्थर था, बहुत precious था, and precious metals for the beautification of a city temple, and sent his messenger out to get them from the chief of a very distant land called Arata. उसे lapis lazuli और ornaments चाहिए थे to decorate his temple, तो बहुत दूर से उसने ट्रेड करवाया था. The messenger heeded the word of the king. By night, he just went by the stars. By day, he would go by heaven's sun divine. He had to go up into the mountain ranges and had to come down out of the mountain ranges. The people of Susa, a city below the mountains, saluted him like tiny mice. ठीक है, अब ये इसमें ऐसा कहना चाह रहा है, ऊपर इतना माउंटेन में चढ़ गया, सब उसे लोग छोटे छोटे दिख रहे थे. दैट इज व्हाई दे अपीयर्ड लाइक टाइनी माइस. छोटे छोटे चूहे जैसे अपीयर हो रहे थे. राइट, 5 माउंटेन रेंजेस, 6 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस ही क्रॉस्ड. द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा टू पार्ट विद lapis lazuli or silver, and he had to make a long journey back and forth again and again, carrying threats and promises from the king of Uruk. Ultimately, the messenger grew weary of mouth. He got all the messages mixed up. Then Ermerkar formed a clay tablet in his hand and he wrote the words down. In those days, there had been no writing of words on clay. So basically, अगर हम देखें uses of Ermerkar का जो पहला ट्रेड था वो उसने कैसे किया था, क्योंकि उसे लपिस लजुली चाहिए था, उसको लेकर के वो कितने 7, 5, 6 जितने भी माउंटेन्स उसने क्रॉस करे, इतने बड़े स्ट्रगल से गया टू प्रोक्योर ऑल दीज आर्टिफैक्ट्स और मटेरियल्स विच वर रिक्वायर्ड फॉर डेकोरेटिंग हिज पर्टिकुलर टेम्पल. ऑलराइट, और वो बहुत दूर की जगह गया था जिसका नाम था अराटा. नाउ एज वी सी, जो मैसेंजर है, मैसेंजर हीड द वर्ड ऑफ द किंग, बाय नाइट ही जस्ट वेंट बाय द स्टार्स. जो मैसेंजर है वो किंग का मैसेज लेकर के गया और उसे माउंटेन्स पे इधर उधर उसने ट्रैवल किया.
और जो मैसेंजर है वो चीफ ऑफ अराटा तक तो पहुंच नहीं पाया, और ताकि उसे लपीस लजूरी और सिल्वर प्रोक्योर कर पाए, और उसने लॉन्ग जर्नी, जो इतनी लंबी जर्नी थी उरूक से, वो बैक एंड फोर्थ करता रहा। अल्टीमेटली जो मैसेंजर है वो बहुत ज्यादा ग्रीव वेरी ऑफ माउथ ऑफ द किंग ऑफ उरूक, वो बहुत ज्यादा थक चुका था, एंड जो मैसेजेस थे वो पूरे मिक्सअप हो गए थे इतने बार बार ट्रैवल करने की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और व्हाटएवर यू कैन से। और उसने फिर क्या किया, मैसेंजर ने क्ले की टैबलेट ली, उसमें अपना मैसेज लिखा, and in those days there had been no writing of words on clay, so that was something very new. So in this chapter so far we have understood about Mesopotamia, important trade routes, and what it was like at that particular point of time. Further we will be studying more about the society, how it governed itself, how the people stayed, the royalty, social structure, hierarchy, so on and so forth. Alright, so this was the first part of the first chapter of your Themes in World History, class 11th NCERT, which was Writing and City Life. We'll be completing the rest of the chapter later in the further parts that will be coming for the same. Thank you, Team Educate.